السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج یہ ہمارا 92واں درس ہے، یعنی 92، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کریں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے. سورہ بقرہ کی 122 اور 123 ان 2 آیتوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق اللہ العلی العظیم. آئیے ان 2 آیات کا لفظی ترجمہ سمائیے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور یقیناً میں نے، فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر، واتقوا اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی کہ نہیں کام آئے گا، نفس کوئی نفس، ان نفسین کسی نفس کے، یعنی کہ کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، شیئن کچھ بھی، کوئی چیز بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور نہ نفع دے گی، شفاعتوں کوئی سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ وہ مدد ہی کیے جائیں گے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ان 2 آیتوں کا میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب آئیے ہم اس کے ترجمہ اور پھر اس کے بعد تفسیر پر غور کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب. جیسا کہ یہ جو آیتیں ہیں ان میں پہلے تمام چیزوں کا ذکر گزشتہ آیات میں آ چکا ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے مراد بنی اولاد یعقوب، بنی یعقوب جو یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے جو رہے ہیں انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. جو موسیٰ علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کئی پیغمبر آئے، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام آخری بنی اسرائیل کے پیغمبر رہے. بہرحال اس کے بعد جو لوگ تھے ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کا کچھ لے کر چھوڑیں گے، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے گی، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، کوئی سفارش ان کی مدد نہ ہوگی اور نہ ان کی
वला हुम युनसरून, ना उनकी किसी किस्म की मदद होगी, यानी काफिरों से मुताल्लिक। तो इन आयात से मुताल्लिक चंद बातें आपके सामने पेश की जाती हैं। समाज फरमाइए कि जैसा कि मैंने आपके सामने बात रखी कि ये पूरी तफसीलात इससे पहले भी वाजी के आयतों में आ चुकी हैं, गुज़िश्ता आयत में आ चुकी हैं। इन आयत का ताल्लुक़ पहले यानी कि शुरू इब्तिदा में बनी इसराइल को निदा देकर अल्लाह ताला खिताब फरमा कर कहा था, निदा देकर उनसे खिताब शुरू फरमाया गया था। इब्तदाई जो आयत रहे हैं उससे अल्लाह ताला उनसे मुखातिब था और मुखातिब होकर उनके सामने तमाम बातों को रखा था। अब बहुत कुछ कलाम फरमा कर, यानी कि बहुत सी आयतें इससे मुताल्लिक़ गुजर चुकी है, बनी इसराइल से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें हमारे सामने आ चुकी है और वो बातें तमाम अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ताल्लुक़ से बतला दिया। अब बहुत कुछ कलाम फरमा कर करीबन इनसे खिताब ख़त्म हो रहा है, यानी कि अब यहाँ पर आयतें, यहाँ पर बनी इसराइल से मुताल्लिक़ जो आयतें जो बयान की गई हैं, अब यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर उनसे खिताबत का, उनसे जो बनी इसराइल से मामला था वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। लिहाजा अब आगे जो आयतें आएंगी वो अलग आयतें रहेंगी। लिहाजा फिर वही खिताब हुआ जैसे कि एक हिसाबदान पहले इजमाली हिसाब बताकर उसकी तफसील बयान करता है और फिर तफसील के आखिर में दोबारा इजमाली हिसाब का जिक्र कर देता है, या मंतकी दावा कायम करके दलाइल कायम करता है और फिर बतौर नतीजा उस दावे को दोहराता है ताकि याद रहे। यहाँ भी पहले फरमाया कि ऐ इसराइलियों मेरी नेमत को याद करो, फिर अपनी नेमतें और उनकी नाफरमानियों की तफसील वगैरह बताकर फरमाया कि इन नेमतों को याद रखना। यानी कि गुज़िश्ता जो आयत में कई मरतबा ये आयतें आप लोगों के सामने आ चुकी है कि बनी इसराइल से मुखातिब होते हुए अल्लाह ताला ने यही कहा कि हमारी नेमतों को याद करो, उन नेमतों को याद करो, उन नेमतों को याद करो। और फिर उनकी नाफरमानियों का भी तस्करा हो चुका है और फिर उन पर जो अजाबात आए, उन्होंने जिस किस्म की नाफरमानियाँ की, वो तमाम बातें भी गुज़िश्ता आयत में अल्लाह ताला ने पेश कर दी है। दूसरा ताल्लुक़ इन आयतों का आयतों में पहले की आयतों में फरमाया गया था कि बनी इसराइल, यानी कि बनी इसराइल से यहाँ पर यह कहा गया कि यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम को अपना ताबे करना चाहते हैं। गुज़िश्ता जो आयत गुजरी उसके अंदर यही बात सामने आई थी कि ये यहूद व नसारा आपसे राज़ी नहीं होंगे और वो तो ये चाहते हैं कि आप खुद उनके ताबे हो जाएं और उनके साथ मिल जाएं। इस किस्म की जो गुज़िश्ता जो आयत में जो बात सामने आई थी तफसील वो आपके सामने रखी गई। यहाँ पर बात बताई गई कि ये लोग तो ये चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को अपना ताबे करना चाहते हैं और वो सब सरदारी करने के आदी है। यानी कि बताया गया कि ये लोगों को आदत रही है, ये लोग इस्लाम कबूल नहीं करने की। गुज़िश्ता भी इन बातों को पेश किया गया कि इन लोगों में वहाँ पर जो उनका जो मुकाम व मर्तबा था, जो सरदारी उन्हें हासिल थी, जो उन्हें फ़ौक़ियत हासिल थी, क्योंकि अहले किताब होने की हैसियत से उनको जो बड़ा मुकाम, आला मुकाम हासिल था, इसकी वजह से उनके अंदर जो तकब्बुर पैदा हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो ये उस बात के आदी हो चुके हैं। अब इनसे खिताब करके फरमाया जा रहा है कि तुमको जो कुछ नेमतें और बुजुर्गियाँ गुज़िश्ता ज़माने में मिली थी वो अम्बिया कराम की ग़ुलामी की बरकत से थी। यानी कि तुम पैगम्बरों की इताअत करते थे, तुम पैगम्बरों की पैरवी करते रहे, जिसकी वजह से तुम्हें वो मर्तबा मुकाम हासिल रहा। अगर तुम इन नेमतों की बका चाहते हो, अगर तुम उन नेमतों को बरकरार रखना चाहते हो, तो फिर इस नबी आखिरुज़्ज़मा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में मबूस हुए हैं, जो पेश हुए हैं, अब तुम्हारा फरीज़ा है कि तुम अगर उसी मुकाम मरतबे को बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और उनकी पैरवी करो। पिछली आयत में ये मालूम हुआ था कि यहूद व नसारा ने किताबुल्लाह को नक़ुव्वत और गुरूर और नफसानियत और तासुब का ज़रिया बना लिया, जिससे वो किताब इनके लिए हिजाब बन गई। अब फरमाया जा रहा है कि ऐ इसराइलियों तुम उन्हीं इनामात को याद करके फिर इख्तियार कर लो जिसकी वजह से तुम्हें पहले बुजुर्गी मिली थी।
यहाँ पर जो आयत जो बयान कही गई कि उन नेमतों को याद करो जिसकी वजह से तुम्हें बुजुर्गी हासिल रही थी, वह अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और तहकीक मैंने बुजुर्गी दी तुमको ऊपर जहानों के, यानी कि उस ज़माने में बनी इसराइल को जो फ़ौक़ियत हासिल थी, जो मुकाम मर्तबा हासिल था, वो अल्लाह ताला याद दिलाए, और उन नेमतों को याद करो। वो नेमतें वगैरह आगे इंशाल्लाह तफसीर मैं आपके सामने रखूँगा। आइए देखते हैं तफसीर में कि या बनी इसराइल, हम पहले बता चुके हैं कि कभी खिताब इताब के लिए आता है, यानी कि अल्लाह ताला गुस्से की हालत में, गज़बनाक होकर गज़ब की हालत में अल्लाह ताला कभी आयत बयान करता है, कभी रहमत के लिए आता है। यहाँ बज़ाहिर इताब का खिताब है, लेकिन मुमकिन है कि रहमत का खिताब हो, इसीलिए इनको बरगज़ीदा नबी याकूब अलैहिस्सलाम की निस्बत करके पुकारा गया। यानी कि बनी इसराइल से मुराद क्या है? याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। बनी इसराइल से मुराद क्या होता है? औलाद याकूब, जो यहाँ पर बयान किया गया है कि औलाद याकूब के नाम से तुमको मुखातिब किया जा रहा है। यानी ऐ इसराइलियो, अगरचे तुम बड़े मुजरिम और खताकार हो, मगर चूंकि हम सत्तार व गफ्फार हैं और तुम हमारे एक बंदे ख़ास की औलाद हो, अगर अब भी हमारी तरफ रुजू करो तो हमारी रहमत तुम्हें लेने को तैयार है। ख्याल रहे कि रब ने कुरान करीम में दीगर अंबिया कराम को नाम लेकर पुकारा, मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलखाब करीम से ऐसे ही दीगर उम्मतों को उनके नसबी नामों से पुकारा, और उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लज़ीना आमनू के प्यारे खिताब से पुकारा। जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू से उम्मत मुस्लिमा से जब मुसलमानों से मुखातिब रहा, खिताब फरमाया तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, तो पुकारा। ये इस उम्मत का एहतराम है। अब आगे जो बयान किया, या बनी इसराइल के बाद उज़्कुरू नेमती, मेरी नेमतें याद करो। जिक्र से या तो उन नेमतों पर गौर करना मुराद है या उनका शुक्रिया अदा करना। उज़्कुरू के माने हैं याद करो, याद दिलाओ, यानी ऐ बनी इसराइल मेरी इन नेमतों को याद करो या याद रखो, या ऐ उलमाए बनी इसराइल मेरी वो नेमतें अपनी कौम को याद दिलाओ। याद से ज़बानी, दिली और इल्मी याद मुराद है। ज़बानी याद में तहरीरी याद, तकरीरी याद सब दाखिल है। रब की इबादत उसकी नेमतों की अमली याद है। जैसे आशूरा का रोज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नजात की अमली याद है और शुक्रिया है। नेमत से जिन्स से नेमत मुराद है, जो सारी नेमतों को शामिल है। यहाँ पर यह रोज़े आशूरा की जो बात कही है, मूसा अलैहिस्सलाम को जो नजात दी गई थी फ़िरऔन से, जो समंदर से जब आप जो गुजर रहे थे तो रास्ता अल्लाह ताला ने बना दिया था और उससे मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ निकल गए थे। उसके शुक्र में ये लोग बनी इसराइल जब सरकार वसल्लम हिजरत कर मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि ये बनी इसराइल जो यहूदी जो लोग हैं वो रोज़ा रखते हैं। तो आपने सवाल किया था, उनसे पूछा था कि क्या बात है, किस खुशी में ये लोग, किस वजह से ये लोग रोज़ा रखते हैं। तो उन्होंने इसी बात का इजहार किया था कि चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अल्लाह ताला ने नजात दी थी, उसके शुक्र में रोज़ा रखते हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई गई कि ये रोज़ा जो शुक्र किया करते हैं, ये भी इंशाल्लाह तफसीर आगे भी आएगी। अल्लती अनअमता अलैकुम, जो ख़ास तुम पर हमने की, यानी कि बनी इसराइल पर जो ख़ास नेमत अल्लाह ताला ने की वो की है कि कुछ तो आम नेमतें मिली थी जिनमें सारे इंसान शरीक थे, यानी कि हर एक को अल्लाह ताला नेमतों से सरफराज करता है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। हर इंसान के लिए वो तमाम नेमतें हासिल हैं। जैसा कि आज भी अल्लाह ताला यहूद हो, नसारा हो, मुशरिकीन हो, मुल्हिदीन हो, जो भी अल्लाह ताला की जो आम नेमतें हैं वो तो सभी के लिए है, क्योंकि वो रब है। लेकिन ख़ास नेमतें वो ख़ास लोगों के लिए ख़ास मौक़ों पर अल्लाह ताला अता करता है। वो अंबिया कराम पर और उनकी उम्मतों पर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर वो बात अभी मैंने आपके सामने जो बात रखी थी वो ये कि यहाँ पर भी वो सामने आई कि आम तो आम चीज़ें जैसा खाना पीना, सांस लेना,
हवा पानी का वो, और ग़िज़ा के लिए तमाम चीज़ें फराहम करना, ज़मीन से ग़िज़ा उगाना, झाड़ दरख्त और चरिंद परिंद, ये तमाम चीज़ें आम हर एक के लिए ये नेमतें हैं। लेकिन ख़ास नेमतें जैसे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से, चूँकि यह मुखातिब है इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बनी इसराइल ख़ास तौर पर कि तौरात दी गई और औलियाद अंबिया होने का तुम्हारे को जो वो मर्तबा हासिल रहा, और फिर मनो सलवा का उतारा गया और बहिर खुलजुम को इनके लिए फटना, जैसा कि अभी आपके सामने मैंने बात रखी कि बहिर खुलजुम से वो समंदर से रास्ता बना वगैरह वगैरह। ये ख़ास नेमतें याद करो। और सबसे आला नेमत ये थी कि वान्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने तुमको तमाम जहानों पर बुजुर्गी अता फरमाई थी। और बुजुर्गों को चाहिए, अब यहाँ पर बतलाई जा रही है कि जब कोई मर्तबा और मुकाम हासिल होता है तो उनके कुछ ख़ास, उनके कुछ वस्फ़ भी होने चाहिए। क्या होना चाहिए? अपनी बुजुर्गी को कायम रखने के लिए रब की इताअत ज़्यादा करे, यानी कि जिसको जितना मुकाम हासिल होता है उसका उसी कदर अल्लाह ताला की तरफ झुक जाना और उसकी इबादत में मशगूल हो जाना, उसकी इताअत में ज़्यादा से ज़्यादा फरमा बरदारी करना, ये उस पर और मज़ीद जो है सो उसके ऊपर ये जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। यहाँ पर यही बात बतलाई गई। अव्वलन तो इस एहसान के शुक्रिया में तुम्हें इंसान बनकर रहना चाहिए, और अगर तुम में इतनी इंसानियत बाकी ना रही कि मनअम का एहसान मानो, यानी कि जो एहसान करने वाला है उसका अगर शुक्र अदा ना करो, तो कम अज़ कम यहाँ पर जो बात बतलाई है, वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। यहाँ पे अल्लाह ताला यहाँ पर डरा रहा है, बतला रहा है कि अगर तुम उसके शुक्रगुजार बंदे नहीं बनते हो तो कम अज़ कम वत्तक़ू यौमन, यानी कि उस दिन से डरो, वत्तक़ू यौमन, क़यामत के दिन से ही खौफ करके ईमान ले आओ। ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में आलमीन के सरदार रहे और वहाँ सब के सामने, यानी कि क़यामत के दिन जलील व ख़ार हो और तुम्हारी रुसवाई बरसरे बाजार हो, यानी कि तमाम दुनिया जो क़यामत के दिन उठाई जाएगी, तमाम मखलूक के सामने तुम्हें रुसवाई हो। ये बात इसलिए कही गई कि तुम तो अहले किताब हो, तुम तो अहले किताब होने का नारा बुलंद करते हो और बनी इसराइल होने का दावा करते हो, औलाद नबी में से होने का दावा करते हो, तो फिर तुम्हारा तो फरीज़ा ये है कि तुम अल्लाह ताला से उसके शुक्र में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने वाले बन जाओ और उसके अहकाम के ताबे हो जाओ, उसके अहकाम के पैरवी करने वाले बन जाओ। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो कम से कम उस बात से तो डरो, तुम्हारी किताबों में भी, पहली किताबों में ये बातें बयान कर दी गई कि क़यामत का दिन होगा जिस दिन तमाम आमाल को हर इंसान के सामने उसके आमाल को पेश कर दिया जाएगा, उसे जज़ा और सज़ा से गुजरना पड़ेगा। जो नेक आमाल करेंगे उन्हें जज़ा दी जाएगी और जो गलत काम करेंगे, गुनाह के काम करेंगे, उन्हें सज़ा दी जाएगी। तो जो अहले किताब हैं उनसे मुखातिब होकर, और फिर यहाँ पर जो बयान किया गया है इससे ये बात हमारे लिए भी बात ये सामने आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम किताबों पर यकीन करने वाले हैं, ईमान रखने वाले हैं और इस कुरान मजीद पर भी हमारा ईमान है। तो फिर ये जो बातें, तमाम बातें बतलाई गई कि हमको भी क़यामत के उस दिन की हौलनाकियों से हमको डरना है और बचना है। तो तुम्हें तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया की तरह वहाँ पर कोई किसी का सहारा नहीं होगा, कि दुनिया में तो अगर कोई कुछ जुल्म करता है, कोई गुनाह करता है, कोई बुराई करता है तो उसे कुछ सज़ा मिलती है, तो उसे कुछ दे दिलाकर उसकी सज़ा को ख़त्म किया जाता है। लेकिन वहाँ पर कोई मामला नहीं होगा, कोई नफ्स किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेगी, बिलखुसूस काफिरों के लिए, बिलखुसूस काफिरों के लिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ आयात में और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस हमारे सामने आ चुके हैं कि जो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने के बाद आप पर ईमान नहीं लाते, इस्लाम में दाखिल नहीं होते, तो वो सब के सब काफिर हैं। और काफिरों को अल्लाह ताला ने ये बात की वजाहत कर दी कि अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ करेगा मुसलमान के, लेकिन दुनिया में रहने वाले मुशरिकीन को माफ़ नहीं करेगा, जो शिर्क करने वाले हैं उनको माफ़ नहीं करेगा। लिहाजा बात यही सामने आती है कि काफिरों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। जो बात यहाँ पर कही गई, वत्तक़ू यौमन, और डरो उस दिन से कि ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, के तुम्हारा कोई जान दूसरे का बदला ना होगी,
शैअन, और ना उसको कुछ लेकर छोड़ा जाएगा, कोई चीज़ नहीं ली जाएगी, कोई चीज़ लेना देने का मामला वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कोई माल होगा ही नहीं तो लेन देन की बात वहाँ पर होगी ही नहीं। और वहाँ पर अदल से काम लिया जाएगा, वला युक़बलु मिनहा अदलू। हाँ, वहाँ पर जो भी काम किया जाएगा, जो भी मामलात होंगे वो अदल से काम किया जाएगा, और कोई सिफारिश वहाँ पर काफिर के लिए कबूल नहीं की जाएगी। वला तनफ़उहा शफ़ाअतु, और कोई सिफारिश नफ़ा ना देगी काफिर को, और ना उनकी कोई मदद होगी। तो यहाँ पर ये बात बतलाई गई, ये बिलखुसूस बनी इसराइल से मुखातिब होकर कहा जा रहा है कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लेते हो, अगर तुम अपनी किताबों के पैरवी करने का जो बात करते हो, तो फिर उन किताबों में जो सरकार वसल्लम के ताल्लुक़ से जो निशानियां बयान की गई है वो नबी आ चुके हैं। अब तुम्हारा काम यह है कि तुम इन पर सरकार दो अलैहि वसल्लम पर इस्लाम ईमान लाओ और अहकामात खुदाबंदी के सामने अमल पैरा हो जाओ, उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाओ, तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि क़यामत के दिन किसी का कोई मददगार नहीं होगा। हाँ, ये और बात है कि मुसलमानों के लिए बहुत सी सिफारिशें काम आएगी, जैसा कि बहुत सी आयत में ये बात आ चुकी है कि अल्लाह तबारक व तआला उस दिन, यानी कि क़यामत के दिन, मुख्तलिफ अम्बिया कराम के ज़रिए जिसको चाहे वो इज़्न देगा। अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न से वो किसी की अगर शिफाअत करते हैं तो वो शिफाअत अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा। किस बात पर? वो भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इज़्न देगा। और ये बातें भी तमाम इससे पहले भी आ चुकी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं को इज़्न देगा, उन्हीं को इस बात की इजाज़त देगा, क्योंकि वो रब है, वो जानता है कि ये जो सिफारिश करेंगे उन्हीं की सिफारिश करेंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला भी है। वो बातों को पेश नज़र रखते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बड़ी हमारी सिफारिश करने वाले होंगे, वो शिफाअत करेंगे गुनहगारों की। लेकिन इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए कि ये बात या एक नुक्ता फिर आपके सामने रखता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और नेकोकार बंदों को और फिर मासूम जो बच्चे जो गुजर चुके हैं वो अपने वालिदैन की भी सिफारिश करेंगे, हुफ़्फ़ाज़ कराम अपने वालिदैन की सिफारिश करेंगे, अपने ख़ानदानों की सिफारिश करेंगे। तो ये सिफारिश करेंगे तो कौन छूटेंगे? ये अहम तरीन नुक्ता है, इस बात को पेश नज़र रखना है कि जब सरकार दो अलैहि वसल्लम भी शिफाअत करेंगे तो कहा जाएगा कि जाओ दोज़ख से जिसके दिल में रमक बराबर भी ईमान है उन्हें निकाल लाओ, यानी कि ईमान का होना लाजिम है और जो गुनाह कर चुके हैं उन्हें दोज़ख से गुजरना पड़ेगा। इस बात को पेश नज़र हमको रखना है और हमको तौबा और इस्तग़फ़ार करना है और हमको डरना है क्या है बारी ताला जो हमारे गुनाह हमसे सरजद हो गए हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में उसे माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, दोज़ख के हवाले ना कर। दोज़ख एक भयानक तरीन अज़ाब का मामला है जहाँ पर आग दहकती है। शिफाअत का मामला होगा तो शिफाअत होगी, लेकिन उससे पहले दोज़ख में जाना पड़ेगा। और वो दोज़ख की नाकियों को हमको पेश नज़र रखना है कि वो दोज़ख कैसी होगी। शिफाअत तो होगी, हमको सरकार दो अलैहि वसल्लम की शिफाअत पर और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम पर हमको पूरा यकीन है, पूरा एतबार है, पूरा हम जो है उसी पर इन्हिसार किए हुए, उसी पर हमारा भरोसा है। लेकिन इस बात को भी पेश नज़र रखना पड़ेगा कि शिफाअत होगी तो कहाँ से निकाले जाएंगे। इस बात को पेश नज़र रखना है कि कहाँ से निकाले जाएंगे, उस दोज़ख की हौलनाकियों से निकाले जाएंगे। उस दोज़ख में कब तक रहेंगे, किन हालात में रहेंगे, क्या सज़ा के मुस्तहिक़ करार दिए जाएंगे, कैसी सज़ा के हम मुर्तकिब होंगे, इस बात से हमको अंदाज़ा नहीं है। वहाँ पर तो बहुत सी अज़ाबात के जैसे अहादीस में बयान कर दिया गया, कुरानी आयत में उसकी हौलनाकियों का जिक्र आ चुका है। तो उन हौलनाकियों से बचने के लिए हमको आज की इस ज़िंदगी में कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए उन आमाल पर अमल करने के लिए हमको जद्दोजहद करनी है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है, बेशक माफ़ करने वाला है, बेशक माफ़ करने वाला है। इसीलिए हम उसके दुआ भी करते हैं, उसके सामने झुकते भी हैं और उससे गुजारिश भी करते हैं कि ऐ बारी ताला हमको दोज़ख के हवाले मत कर, ऐ बारी ताला हमको दोज़ख के हवाले मत कर, हमारी ज़िंदगी में हमारी इस्लाह कर दे, हमारी ज़िंदगियों को ही ऐसा गुजारने वाला बना दे
جو کہ تیرے تابع رہے، تیرے حکم کے تابع رہے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے رہے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے میں زندگی گزارنے والے رہے۔ اے باری تعالیٰ ہم کو حرام سے بچائے رکھ، حلال روزی عطا فرما، اور ہر گناہ سے ہم کو بچائے رکھ اے رب العالمین۔ تو ہی بچا سکتا ہے، تو ہی مقلب القلوب ہے باری تعالیٰ۔ تو اس دوزخ کے حوالے نہ کر ہم کو اے باری تعالیٰ، اس دوزخ کے حوالے ہونے سے پہلے ہی تو ہم کو بچا لے اے رب العالمین۔ اے رب العالمین اس دوزخ کے حوالے ہونے سے ہم کو بچا لے اے رب العالمین۔ ان آیات میں ہم کو یہ روشنی ملتی ہے، یہ روشنی ملتی ہے، جو باتیں یہود و نصارہ کے ساتھ کہی جا رہی ہے، جو باتیں مشرکین کے ساتھ کہی جا رہی ہے، وہی باتیں اس قرآن میں ہمارے سامنے بھی آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھی ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ اطاعت کی باتیں ہیں، وہ اللہ پر ایمان لانے والی باتیں ہیں، وہ سرکار دو علیہ وسلم پر ایمان لانے والی باتیں ہیں، وہ قرآن مجید پر ایمان لانے والی باتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان گناہوں سے بچنے کی دعائیں کرنے والی باتیں ہیں، اور ان گناہوں کے راستے سے بچنے کے لیے ہم کو جد و جہد کرنے والی باتیں ہیں اور کوشش کرنے والی باتیں ہیں، کہ تاکہ تم اس دنیا میں تم نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارا خبر کا جو معاملہ ہے، وہ اعمال کا معاملہ، خبر کا جو معاملہ ہے وہ آسان ہو جائے، اور پھر خبر کے بعد جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو وہاں پر جو معاملہ جو فیصلے ہوں گے تو وہ فیصلے ایسے نہ ہو کہ ہم عذاب کے مستحق قرار دیے جائیں، اور پھر آخر کار تمام قیامت کا معاملہ پورا پیدا ہو جانے کے بعد، تمام چیزوں سے جو سو گزر جانے کے بعد، دوزخ کی ہولناکیوں سے گزر جانے کے بعد ہماری شفاعت ہو، اور ہم پر اللہ تعالیٰ فضل و کرم کا معاملہ فرمائے۔ ایسا نہیں، رب العالمین سے ہم یہ دس دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم کو اس فیصلے کے دن ہی تو ہماری مغفرت کر دے، اس فیصلے کے دن ہی تو ہماری مغفرت کر دے، ہم کو دوزخ کے حوالے نہ کر، اور پھر خبر میں جب ہم جائیں تو ہم نیک و کار صالح بندوں کی شکل میں ہم خبر میں جائیں، تاکہ ہمارے سے جو سوالات کیے جائیں گے تو ان سوالات کا ہم صحیح جواب دینے والے بن جائیں۔ ان معاملوں میں، ان نعمتوں کو ہم جو ہے باری تعالیٰ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو، تیرے شکر گزار بندے ہیں باری تعالیٰ۔ تو ہمارے ساتھ صالحین کے ساتھ ہمارا معاملہ فرما، تو ہمارے شکر گزار بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ فرما اے رب العالمین۔ گو کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت ناشکرے ہیں، ہم بہت سی برائیوں میں ملوث ہیں، بہت سی برائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دے، اے باری تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو پھیر دے، اے باری تعالیٰ اس دنیا کی چاہت اور اس دنیا کی محبت اور اس نفسانی خواہشات کو ہمارے دلوں سے نکال دے اے رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رب العالمین کہ تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اے رب العالمین، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اے رب العالمین، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے اے رب العالمین، عذاب جہنم سے بچا لے اے رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، الا انت استغفرک واتوب الیک، الا انت استغفرک واتوب الیک، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔